बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में दहली कार धमाके के मुलजिम डॉक्टर उमर नबी के रिहायशी मकान को मुनहदम कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि इस मकान को दौरान शब कंट्रोल्ड शुदा धमाके से ज़मीन बोस किया गया। जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में जुमे का दिन उस वक़्त गैर मामूली बन गया जब बडगाम असम्बली हलके से पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़र मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त देकर एक ऐसा बाब रकम किया जिसका हवाला आइंदा इंतखाबात तक दिया जाता रहेगा। ये वही बडगाम नशस्तें हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 6 दहाइयों से सियासी चमक दमक के साथ बिला रोक टोक कामयाब होती आई है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात ने इस रिवायत को पहली मर्तबा तोड़कर एनसी के सियासी किले में दरार डाल दी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीडीपी के नाम पे, पीडीपी के नाम पे थोड़ा सा जॉय प्लीज अंदर क्यों आके क्या आप आ जाओ जॉय बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पीडीपी की हैरान कुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इखलाकी पैगाम जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 146 का हवाला देकर तकब्बुर, गलत रविश और अदमी बसीरत के नताइज पर रोशनी डाली। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि तकब्बुर ज़वाल की पहली सीढ़ी होती है। सियासी मुबस्सिरीन इस पोस्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस की बडगाम में तारीखी शिकस्त के तनाजुर में देख रहे हैं, जहां पार्टी की इस नशस्त पर 6 दहाइयों बाद पहली मरतबा हार ने तंजीम के अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत के फैसलों पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। आगा रूहुल्लाह पहले ही इंतखाबी मुहिम से दूर रहे थे और आज की ये पोस्ट पार्टी के अंदर
ایک معنوی اشارہ سمجھی جا رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آغا روح اللہ کا یہ پیغام نہ صرف سیاسی تبصرہ ہے بلکہ پارٹی قیادت کو خود احتسابی، عاجزی اور عوامی احساسات کو سمجھنے کی دعوت بھی ہے۔ ان کے مطابق قرآنی حوالہ استعمال کر کے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی تکبر، عوامی جذبات سے بیگانگی اور غلط روش پر اصرار کسی بھی جماعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کو بڑگام ضمنی انتخابات میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد سیاسی منظرنامے میں بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعے کو نامہ نگاروں سے گفتگو میں این سی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کے کردار پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آغا روح اللہ نے انتخابی مہم سے کنارہ کشی کر کے سیاسی طور پر خود کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ سر آغا روح اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایروگینس از اے ریسیپی آف ڈیزاسٹر ان بڑگام، کیا ریئیکشن آ رہا ہے؟ مجھے ان پہ کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن کیا وہ فیکٹر نقصان دائق رہا؟ اگر نقصان دائق نہیں رہا ہوتا، دیکھو اتنا میں ضرور کہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، You cut your nose to spite your face۔ روح اللہ نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کیا 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 نہیں کیا وہ ایک بات، لیکن سیاسی طور خود تو انہوں نے خودکشی کی۔ لیکن سنیں نا، کیونکہ جو شخص وہاں سے جیتا ہے وہ کبھی روح اللہ کو وہاں دوبارہ اٹھنے نہیں دے گا۔ میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا، روح اللہ کبھی دوبارہ بڑگام میں اٹھ پائے گا یا نہیں یہ تو صرف روح اللہ طے کر سکتا ہے۔ لیکن چلیے جو ہوا سو ہوا، اب تنظیم کو کرنا ہوگا وہ ہم کر لیں گے۔ آج گھر اڑایا گیا، اگر ان چیزوں سے آتنکواد رک جاتا تو ابھی تو رک گیا ہوتا۔ آپ نے پہلگام کے بعد بھی کتنے گاڑ اڑائے، رکا ہی ہے۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ان چیزوں سے ناراضگی اور غصہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں انہیں اپنے فیصلوں پہ غور کرنا چاہیے، کیا ان چیزوں سے وہ آتنکواد روک پائے یا نہیں۔ میں بھی 6 سال وزیر اعلیٰ رہا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری میری تھی۔ ہر سال ملیٹنسی کے حملوں میں کمی آئی، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی اس طرح گھر اڑانے کی مجبوری جو ہے محسوس نہیں ہوئی۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی دلی میں حالیہ بم دھماکہ، جس کے نتیجے میں اپنی روزمرہ مصروفیات میں مشغول 12 بے گناہ انسانوں کی جانیں چلی گئیں اور بے شمار لوگ بدترین زخموں اور جسمانی اذیت کا شکار ہوئے۔ نہایت ہی دلخراش اور رنج انگیز سانحہ ہے۔ اس طرح کے واقعات انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسے المیوں کو ہمارے یہاں جس انداز سے میڈیا کے ذریعے سنسنی، ڈرامہ اور شور و غل کے ساتھ
पेश किया जाता है। दरियासना और मरकजी नाम जामिया नहाद मस्जिद श्रीनगर में नमाज इनसाइड जुमा के मौके पर ज़राए का एक हवाला बड़े देकर इज्तिमा से जिस तरह खिताब से के दौरान एक मीरवाइज खास कश्मीर नैरेटिव, मौलवी उमर एक फारूक ने खास दिल्ली बयानिए में को हालिया बम हवा दी धमाके को जाती है। इंतहाई वो फौरन ही अफसोसनाक और इस सानिया दिल को दहला एक देने वाला वाक़ा मखसूस करार दिया। मजहब उन्होंने कहा कि या इस कम्युनिटी सानिया के में साथ 12 बेगुनाह जोड़ने शहरी और अपनी उन्हें जान से हाथ धो मुजरिम बैठे, बनाकर जबकि पेश मुतअद्दिद करने शदीद का तौर पर जख्मी सबब हुए, बनते हैं। जो पूरे मुल्क इस के तर्ज लिए अमल के सदमे नतीजे का में बाइस है। मीरवाइज ने हमारे मुझे बच्चे, क्या कुछ कहा, कश्मीरी आइए बच्चे सुनते हैं। और नौजवान जो भारत की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में तालीम हासिल कर रहे हैं या रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम हैं, रातों रात सब के सब मशकूक बना दिए जाते हैं। अपनी सलामती और मुस्तकबिल के बारे में वो खौफ महसूस करते हैं और यहाँ कश्मीर में उनके अहले खाना और आम लोग शदीद इज़्तिराब और तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। मैं और वो तमाम सियासी और दीनी और मजहबी तंजीमें जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, हमने हमेशा हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है और करते रहेंगे। कश्मीर के लोग ऐसे हर सानिया के वक्त सबसे ज्यादा दर्द और हमदर्दी महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद दिहाइयों से तशद्दुद, जानों के ज़िया और मुसलसल खौफ की कैफियत से गुजर रहे हैं और इस अजियत को अपनी जिंदगियों में उन्होंने झेला है। मैं यहां पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि नई दिल्ली में जो हुआ, कोई भी मकसद ख्वाह कितना ही बरहक क्यों न हो, बेगुनाह इंसानों के कत्ल गारत का जवाज नहीं बन सकता और ना ही कोई दीन इसकी इजाजत देता है। मेरी नजर में मसाइल का हल, बेहतरीन रास्ता हमेशा मकालमा यानी डायलॉग रहा है। ऐसा डायलॉग, ऐसा मकालमा जिसमें हम एक दूसरे की बात को एहतराम से सुने, एक दूसरे के दर्द को महसूस करें और बाहिमी एतमाद के साथ हम पुल तामीर करें, न कि नफरत की दीवारें खड़ा करें। मैं बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला चुका हूं कि जामिया मस्जिद के मिंबर और मेहराब ने मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी है कि यहां के आवाम की आवाज में बनूं और उनके एहसासात और महरूमियों को सामने रखूं। आज जम्मू कश्मीर के लोग खुद परेशान हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग मजबूर और बेइख्तियार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बड़ा सियासी मसला तो जूं का तू है, लेकिन उसके साथ साथ वो आईनी खुद मुख्तारी जो हुकूमत हिंद ने जम्मू कश्मीर के आवाम को दी थी अगस्त 2019 में, उस वक्त छीन ली गई जब रियासत को घटाकर मरकज के जेर इंतजाम इलाके यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यहाँ के लोगों के जमीन और मुलाजमत से मुताल्लिक खुसूसी हुकूक भी खत्म कर लिए गए। इसके फौरन बाद लोगों के दिलों में अपनी शिनाख्त, आइडेंटिटी, अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल
यहाँ की आबादियाती साख में तब्दीली, डेमोग्राफिक चेंज के खदशा हकीकी सूरत इख्तियार करने लगे। इजहार राय की आजादी पर सख्त तरीन पाबंदियां, हर तरह हर सतह पर मुसलसल निगरानी, सरकारी मुलाजिमीन में बिला जवाज बरतरफियों और जमीन और जायदाद की कुर्की या जब्ती का खौफ, तहकीकाती एजेंसियों के लगातार छापे और गिरफ्तारियां, और इसके साथ साथ नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, खुसूसन आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद यहाँ के नौजवानों के लिए मुलाजमतों और रोजगार के मौके सुकड़ते चले गए, और इस पर मुस्तजाद एक ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी का निफाज जो कि सिर्फ और सिर्फ ना इंसाफी पर मबनी है। इस सारी सूरत हाल ने मजमूई तौर पर लोगों में शदीद मायूसी, बेइत्मीनानी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाराजगी को जन्म दे दिया है। मेरी गुजारिश है, अरबाब इख्तिदार, जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग इख्तियार साज इदारों में हैं, जो फैसला साज हलकों में हैं, कि मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के प्रिज्म से, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के जाविये से देखने और बरतने के बजाय अपनी मजमूई पॉलिसी और तर्ज फिक्र का संजीदगी से वो असर नौ जायजा ले। जैसा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यहाँ के मसले को दायरे इंसानियत और जमहूरियत में रहकर समझने और हल करने की जरूरत है। बहरहाल ये फैसला अरबाब इख्तिदार को लेना है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बेहतर की उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं, और ये जानते हैं कि ये तवक्कुल ही हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।